Good morning, dear student. Welcome in my new video. Dear student, today we will discuss about remaining question of exercise 8.2 NCERT class 9 mathematics. Question number 2 says that ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. ABCD is a rhombus. P, Q, R, S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. We have to prove that PQRS quadrilateral PQRS is a rectangle. Quadrilateral PQRS is a rectangle. So to prove PQRS is a rectangle, we have to prove that all opposite side of the quadrilateral are equal, यानी PQ equal SR and QR equal PS and each angle of this quadrilateral is 90 degree. So here we go in triangle ABC. Triangle ABC. In triangle ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Join P to Q. PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by the midpoint theorem. Similarly, in triangle ADC, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. Then SR is parallel to AC and SR is half of AC by midpoint theorem. From above, PQ parallel to AC or SR parallel to AC. Hence, SR parallel to PQ. PQ equal to half of AC, SR equal to half of AC. Hence, SR equal to PQ. In quadrilateral PQRS, one pair of opposite side PQ and RS. One pair of opposite side are equal and parallel. PQ parallel to SR and PQ equal to SR. One pair of opposite side is equal and parallel. Then PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. So opposite side of this parallelogram यानी PQ parallel to SR and PQ equal to SR. Similarly, PS parallel to QR and PS equal to QR. Now we have to prove that angle SPQ equal to 90 degree. SPQ equal to 90 degree. In quadrilateral MPNO, छोटा quadrilateral MPNO, OM, देखिए AC पैरेलल है PQ के, ये पूरी लाइन AC पैरेलल है PQ के, तो इसका छोटा सा हिस्सा OM पैरेलल होगा PN के. इसी तरीके से PS पैरेलल है BD के, तो इसका छोटा सा हिस्सा MP पैरेलल होगा ON के. तो एक क्वाड्रिलेटरल MPNO में OM पैरेलल है PN के और MP पैरेलल है ON के, इसलिए MPNO इज ए पैरेललोग्राम. MPNO इज ए पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये आपस में इक्वल होंगे. इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, आर इक्वल. तो एंगल MPN और एंगल MON आपस में इक्वल. इसी तरीके से एंगल PMO ये एंगल और एंगल PNO ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. लेकिन 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 क्या, ये जो हमारा रोम्बस है ABCD, इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए एंगल जो AOB हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा. अब इस AOB को हम लोग MON भी लिख सकते हैं, तो एंगल MON भी 90 डिग्री होगा. लेकिन MON एंगल MPN के इक्वल था, ठीक, तो यहाँ से MPN 90 डिग्री हो गया, उसी को हम लिख सकते हैं SPQ 90 डिग्री हो गया. तो क्वाड्रिलेटरल PQRS को हम लोग पैरेललोग्राम दिखा दिए. वहाँ से क्या मिला कि अपोजिट साइड इक्वल मिल गया और एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया, इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3, AB
CD is a parallelogram. ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. P, Q, R, and S are the midpoint of ABCD. AB, BC, CD, and DA. ABCD is a rectangle. P, Q, R, and S are the midpoints of side AB, BC, CD, and DA. We have to prove that PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. So to prove PQRS is a rhombus, we have to prove that side PQ equal to QR equal to RS equal to PS, because all side of rhombus is equal. So इन ट्राइंगल ADC हम लोग इस रेक्टेंगल ABCD के डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी AC और BD को आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो देखते हैं ट्राइंगल ADC में AD का मिड पॉइंट S, DC का मिड पॉइंट R। ठीक, तो S और R को ज्वाइन करा दिया गया, तो ये SR AC के पैरेलल होगा और SR हाफ हाफ AC होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। SR AC के पैरेलल, SR AC का आधा। इसी तरीके से ट्राइंगल ABC में P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, इनको ज्वाइन कराने वाला लाइन PQ होगा। तो PQ पैरेलल होगा AC के और PQ आधा होगा AC का। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला कि क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपोजिट साइड का एक पेयर यानी PQ और RS, अपोजिट साइड का एक पेयर यानी PQ और RS आपस में इक्वल है और पैरेलल भी है। यहाँ देखिए SR भी AC का आधा है और PQ भी AC का आधा है। इसी तरीके से SR भी AC का पैरेलल और PQ भी AC का पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपोजिट साइड का एक पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल हो गया, इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ट्राइंगल BDC में ट्राइंगल BCD में QR हाफ हाफ BD और QR पैरेलल टू BD। या देखिए BDC में Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of DC। तो QR पैरेलल टू BD और QR इज हाफ हाफ BD। इसी तरीके से ABD में P is the midpoint of AB and S is the midpoint of AD। So SP या PS पैरेलल टू BD and PS half of BD। But in rectangle ABCD diagonal are equals, यानी BD इक्वल टू AC। तो उस BD की जगह हम लोग AC को पुट कर सकते हैं, BD की जगह AC को पुट कर सकते हैं। तो PS क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल और AC का आधा हो जाएगा। इसी तरीके से QR भी AC के पैरेलल और AC का आधा हो जाएगा। तो हम 1 2 सिम्प्लिफिकेशन 1 2 3 और 4 से देखने की QR AC का आधा और QR भी AC के पैरेलल, PS भी AC का आधा और PS भी AC के पैरेलल। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हम देखेंगे कि PQRS एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक, PQRS एक रोम्बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें साइड AB पैरेलल है साइड DC के। साइड AD का एक मिड पॉइंट है E। इस E से AB के पैरेलल एक लाइन जा रही है जो कि साइड BC को F पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक, ABCD ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है CD के, AD का मिड पॉइंट E है, E से एक लाइन जा रही है जो कि AB के पैरेलल है और वह BC को F पे इंटरसेक्ट करता है। हमको प्रूफ करना है कि अब BC का मिड पॉइंट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रेपेजियम के डायगोनल BD को ज्वाइन करा देंगे। ट्रेपेजियम के डायगोनल BD को जब ज्वाइन करा देंगे तो ये डायगोनल इस लाइन EF को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमको प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इन ट्राइंगल
ए बी डी में देखिएगा आप लोग, आपके सामने ट्राइंगल ए बी डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड लाइन ओ ई, पूरी लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी के, तो ये छोटी सी लाइन ओ ई भी पैरेलल होगा ए बी के। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ओ ई पैरेलल टू ए बी, इसलिए ओ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल खींची जा रही है, तो वो लाइन तीसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी तीसरी लाइन को वो आधा करेगी, बांट देगी दो बराबर हिस्सों में। ठीक, तो यहाँ क्या है, ट्राइंगल ए बी डी में ई मिड पॉइंट है ए डी का, और ई से एक लाइन जा रही है जो कि इस साइड के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इसको आधा कर देगी, यानी ओ बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राइंगल डी बी डी सी में O is the midpoint of BD, O is the midpoint of BD and OF parallel to DC, OF parallel to DC because AB पैरेलल था CD के और EF पैरेलल है AB के, इसलिए ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल जाए, तो हम कह सकते हैं कि OF भी DC के पैरेलल होगा। OF अगर DC के पैरेलल है और OBD का मिड पॉइंट है और ये लाइंस BC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो F भी BC का मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, नोट कर लीजिए इसको। सिमिलरली ट्राइंगल BDC क्या हो जाएगा कि OF पैरेलल DC के और O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, हेंस F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। देखिए 5वां क्वेश्चन मैं ऐसे ही समझा दूंगा, कर इसको आप लोग खुद ही प्रूफ करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है CD का। इसके डायगोनल BD को ज्वाइन करा दिया गया है। ठीक, AF और EC BD को पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूफ करना है कि ये AF और EC BD को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी ट्राइसेक्ट करते हैं। हमको प्रूफ करना है कि PD इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, यानी AF और EC BD को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो साइड AB पैरेलल होगा CD के, साइड AB पैरेलल होगा CD के, तो इसका ये छोटा सा हिस्सा AE पैरेलल होगा CF के, AE पैरेलल होगा CF के। ये भी होगा कि साइड AB CD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा कि ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए AB CD के पैरेलल होगा। देखिए पूरी साइड के बराबर, तो आधा आधे के बराबर, तो CF जो है AE के बराबर हो गया। तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल AECF दिख रहा है, AECF। इस AECF में AE CF के इक्वल और AE CF के पैरेलल है, तो इन क्वाड्रिलेटरल AECF वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, हेंस AECF इज ए पैरेललोग्राम, AECF इज ए पैरेललोग्राम। अब देखेंगे ट्राइंगल DQC में, DQC में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक, और F से एक लाइन जा रही है PF, F से एक लाइन PF जा रही है जो कि QC के पैरेलल। अब ये QC के पैरेलल क्यों है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि AECF एक पैरेललोग्राम है, AECF एक पैरेललोग्राम है, तो AF पैरेलल होगा EC के, तो ये छोटी सी लाइन PF पैरेलल होगा QC के। तो ट्राइंगल DQC में CD का मिड पॉइंट F है और इससे लाइन जा रही है PF जो कि QC के पैरेलल है, तो P मिड पॉइंट होगा DQ का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ हमको मिल गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ट्राइंगल APB में AB का मिड पॉइंट E
और इससे जाने वाली लाइन EQ पैरेलल है AP के, ठीक। तो Q मिड पॉइंट होगा BP का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से मिलेगा BQ इक्वल टू DP। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि DP PQ के इक्वल है, यहाँ देख रहे हैं कि BQ PQ के इक्वल है, इसलिए DP PQ और BQ आपस में इक्वल होंगे। हेंस देयरफॉर लिखेंगे AF और EC इस BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अपोजिट साइड यानी AB का मिड पॉइंट P है, CD का मिड पॉइंट R है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन PR है। इसी तरीके से AD का मिड पॉइंट S है, BC का मिड पॉइंट Q है और इनको ज्वाइन करने वाला लाइन SR है। ये दोनों PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमको प्रूव करना है। PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि PQSR को ज्वाइन करें, यानी PQRS को एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे और एक डायगोनल हम लोग BD को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि ट्राइंगल ABD में AB का मिड पॉइंट है P और AD का मिड पॉइंट है S। तो PS जो है वो BD के इक्वल हो, BD के आधे के इक्वल और BD के पैरेलल होगा। इसी तरीके से ट्राइंगल BCD में QR BD के आधे के इक्वल और उसके पैरेलल भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो PQRS में अभी हमने देखा कि PS QR के इक्वल हो गया और PS QR के पैरेलल भी हो गया, ठीक। इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं, देखिए PQRS में ये PR और QS डायगोनल की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जानते हैं हम लोग कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं कि PR और QS बाइसेक्ट ईच अदर, PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, यही हमको प्रूव करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ABC जो कि C पे 90 डिग्री है। राइट ट्राइंगल ABC है, C पे 90 डिग्री है। हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है M, AB का मिड पॉइंट है M। इस M से BC के पैरेलल एक लाइन MD खींचा गया है जो कि AC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है, यानी MD पैरेलल है BC के। प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए ट्राइंगल ABC में साइड AB का मिड पॉइंट M है और इस M से एक लाइन MD जा रही है जो कि इस साइड के पैरेलल है BC के। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहला यहाँ से प्रूफ हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC। तो देखिए लाइन MD पैरेलल है BC के और ये AC एक ट्रांसवर्सल की भूमिका अदा करेगा, ठीक। तो ये वाला एंगल BCD और एंगल MDA, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और हम जानते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हेंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया कि एंगल MDA 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल MDA और एंगल BCD इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा MD परपेंडिकुलर टू AC। तीसरा कह रहा है कि अब हम C से M को ज्वाइन कर देंगे, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहाँ देखिए AM जो है AB का आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। तो AM AB का हाफ है, तो ये इतना प्रूफ हो गया। हमको प्रूव करना है CM AM के बराबर है। तो देखिए ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD में MD दोनों में कॉमन है, AD CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। और एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC बिकॉज MD परपेंडिकुलर टू AC। तो साइड से ट्राइंगल AMD और CMD
कांग्रुएंस प्रूफ हो गया और वहाँ से आया CM इक्वल टू AM और AM किसके इक्वल था, हाफ ऑफ AB के, तो यहाँ से आया CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।